गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक के सर पे गुरु हाथ रहे तेरा। गुरु ऐसे विनय दे दे, गुणगान करूं तेरा। इस बालक આપણે થોડા મોટા ભાગના આવી ગયા હતા, મોટા ભાગના આવી ગયા. કોઈ એકાદ આગો પાછો હોય, બીજા શબ્દો ફેરવા. પાર્શ્વનાથ ભગવાન કી જય, સદગુરુ દેવ કી, રત્નત્રય ધર્મ કી. ઓમ. મોટા ભાગના વક્તવ્યો સારા હતા. અભ્યાસ વિશેષ માગે છે. વિવેક અને દેવગુરુનું સ્વરૂપ એમ મુખ્ય બે વિષયો આજે વક્તવ્યમાં હતા. ઉત્તમ મુમુક્ષુતા ભણી એ પણ વિષય હતો. ઉત્તમ મુમુક્ષુતા ભણી એટલે વિવેકની પ્રાપ્તિ અને વિવેકની વૃદ્ધિ. વિવેકની પ્રાપ્તિ અને વિવેકની વૃદ્ધિ. થોડા મુદ્દાઓ જે રહ્યા છે એ વિશે 2-4 મિનિટમાં વિચાર કરીએ. ને કોઈ ભાઈઓને કંઈ પૂછવું હોય તો એ પૂછી શકે છે. Any query? બોલો. હા. वो भेदाभेद रत्नत्रय के माफी गए. આ ભગવાનની વાત કોક જ સમજી શકે છે. અમૃતચંદ્રાચાર્યને પ્રવચન સારમાં ચરણાનુયોગ ચુલિકામાં બંનેનો સાથે સ્વીકાર કરે છે. અમે એમ જાણીએ છીએ કે, જો કે અમે એમ જાણીએ છીએ કે મુનિના 28 મૂળ ગુણ હોય છે, પરંતુ અમે એમ પણ જાણીએ છીએ પરમાર્થથી કે મુનિને એક જ ગુણ હોય છે અને તેનું નામ પરમ સમતા અથવા સામ્ય ભાવ. એટલે ભેદની વિવેકપૂર્ણ સાધનાથી અભેદનો લક્ષ્ય થાય છે. સોરી.
આ પોઈન્ટ મોટા ભાગે નિશ્ચયને અવલંબી જીવોને ખ્યાલમાં આવતો નથી, કારણ કે એમના ગુરુઓના પણ ખ્યાલમાં નથી. આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ, નિશ્ચય સમ્યત્વની પ્રાપ્તિ એ ક્યારે થશે એનું ઇન્ડિકેશન કર્યું હતું. મોહ મર્યાદામાં આવે તો જ મોહ ગ્રંથિનો ભેદ થાય. મોહનું જે ક્વોન્ટમ છે ત્યાં જ જૈન દર્શન સર્વ અન્ય દર્શનથી જુદું પડે. સંસારી અવસ્થામાં જીવ ચૈતન્યાત્મક પ્રદેશ સ્વરૂપ, કાર્મણ વર્ગના સ્વરૂપ અને તૈજસ વર્ગના સ્વરૂપ નિરંતર હોય છે. એક ક્ષણ પણ ચૈતન્ય તે દ્રવ્ય ભાવની અપેક્ષાએ જોતા ચૈતન્ય રૂપ હોતો નથી. થોડો ખ્યાલ આવે છે આગળ વધેલા સાધકોને માટે. હું આત્મા છું, હું શુદ્ધ આત્મા છું એમ આપણે કહ્યું, એમ આપણે માન્યું. હા, તો એ માન્યું તે એ ગુરુના કહેવાથી જો સમજો હોય સાચું તો દ્રવ્યાર્થિક નયની દ્રષ્ટિએ વિચાર કરવામાં આવે તો હું આત્મા છું. નહીં તો દ્રવ્ય શુદ્ધ, ગુણો શુદ્ધ અને વર્તમાનમાં મેલી પર્યાય તે ત્રણ ભેળા થાય તો આત્મા થાય, નહીં તો આત્મા ન થાય. સંસારી આત્મા કોઈ આત્મા પર્યાય વિના ન હોય. સંસારી આત્માની પર્યાય અવશ્ય મલિન હોય જ, અને એ પર્યાયને જો કાઢી નાખવામાં આવે તો ભગવાનનું આખું શાસન ઝીરો થઈ ગયું. તો બંને દ્રષ્ટિનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ. દ્રવ્ય દ્રષ્ટિનું મહાત્મ્ય લાવી અને આત્માની મહત્તાનો સ્વીકાર કરવો જોઈએ, પરંતુ પર્યાયમાં જે મલિનતાઓનો જથ્થો પડ્યો છે તેને એક એક પણ દૂર કરવો પડશે. That long process. કોઈ કે એનું આગમ પ્રમાણ આપો કે જો ભગવાને જ્ઞાનથી મોક્ષ નથી કહ્યો, શ્રદ્ધાથી મોક્ષ નથી કહ્યો અને ચારિત્રથી મોક્ષ નથી કહ્યો. ચાલો એ વાત જવા દો. એક બીજી વાત, ધર્મનું વર્ણન કર્યું ત્યારે ક્ષમા માર્દવાર્જવ સત્ય શૌચ સંયમ તપ ત્યાગ આકિંચન બ્રહ્મચર્યાણી ધર્મ. જેને અત્યારની અપેક્ષાએ વિચારીએ, સાતમું ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત કરવું હોય કોઈ મોટા પુરુષને, બાકી તો ચોથું ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો આંશિક આત્માનો અનુભવ થાય તો જ ચોથું ગુણસ્થાન પ્રાપ્ત થાય. આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ, નિશ્ચય સમ્યત્વની ઉત્પત્તિ અને आंशिक आत्मानुभूति नो अविनाभावी निमित्त नैमित्तिक संबंध है. जिसने अतीन्द्रिय आनंद का कुछ भी अनुभव नहीं किया वह तीन काल में निश्चय सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता. इसलिए पूज्यपाद भगवान कहते स्व संवेदन सुव्यक्त तनुमात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यवान आत्मा लोका लोक विलोकन. स्व संवेदन सुव्यक्त, आत्मा को प्रकट करने का मैना, आत्मज्ञान प्रकट करने का मैना, निश्चय रत्नत्रय धर्म प्रकट करने का परमार्थिक उपाय एक ही है, वो स्वसंवेदन को प्राप्त हो. स्वसंवेदन को प्राप्त होना, यही निश्चय विवेक है.
यही निश्चय विवेक। निश्चय में ना निश्चय विवेक का फल। निश्चय विवेक दो प्रकार होता है। सविकल्पक अवस्था में बार बार यह चैतन्य, यह ज्ञान में, यह ज्ञान मात्र में, यह ज्ञान मात्र में ऐसा भाव में टिकता है। मैं ज्ञान मात्र पर भाव शून्य हूँ, सहज ज्ञान घन स्वयं पूर्ण हूँ, सत्य सहज आनंद धाम मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ। ऐसा लक्ष्य, ऐसी स्मृति, ऐसी ज्ञान जागृति, ऐसी ज्ञप्ति क्रिया, ऐसा सविकल्पक ध्यान बहुत काल जब चलता है तो जैसे जैसे वो चलता है वैसे वैसे अकाम निर्जरा होती है। अकाम निर्जरा होती क्या होता है? मोहनी कर्म की सब घाती कर्म की सब प्रकृतियां पाप प्रकृतियां ही है। घाती कर्म की एक भी प्रकृति पुण्य प्रकृति नहीं है। तो क्या होता है जब इस प्रकार का विवेक करता है तो पाप प्रकृति पुण्य प्रकृति में संक्रमित हो जाती है, बदल जाती, ट्रांसफॉर्मेशन। और पाप प्रकृति जो बंधी हुई है उसका अनुभाग टूट जाता है, घट जाता है, नष्ट हो जाता है। मैंने मोह नष्ट होता है, मैंने ज्ञानावरण नष्ट होता है, पाप कर्म की प्रकृतियों का अनुभाग नष्ट होता है। मैंने क्या हो रहा है विचारो? हमारे कुछ आगे पीछे हो तो कहना। इस प्रकार के आत्मा के लक्ष्य पूर्वक जब पाप का अपकर्षण हो रहा है, पाप का अपकर्षण हो रहा है, यही बात होती है कि तू मोह ग्रंथि के भेद करने की समुच्चय योग्यता के नजदीक आ रहा है। और जब वह आएगी और पुरुषार्थ जारी करेगा तब जाकर के करण लब्धि का पुरुषार्थ कर पाएगा। है ना? आज थયું अपकर्षण, પાપ ઘટ્યું એટલે પાપની સ્થિતિ અનુભાગ તૂટ્યા. શેનાથી? હું આ જ્ઞાન માત્ર છું, જ્ઞાન માત્ર છું. એની સાથે બીજું બધું પણ છે. ત્યાં ચરણાની યોગમાં જવાનું. દેવ પૂજા, ગૃહાસ્તિ, સ્વાધ્યાય, સંયમ, તપઃ, દાનમ ચ. और पुण्य प्रकृति उसका अपकर्षण हो रहा है, उसका उत्कर्षण हो रहा है. पुण्य प्रकृति बढ़ती जा रही है क्योंकि ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र, ज्ञान मात्र. ये सविकल्पक है, ये अनुभव नहीं है, अनुभव नहीं है. ऐसा बहुत समय अभ्यास करने से वह ज्ञान स्वरूप जो निज चैतन्य सत्ता है उसका वेदन क्रमशः होने लगता है. और उसमें थोड़ी सूक्ष्मता है. आपको इधर 5 गुलाब के फूल रख दिए बड़े बड़े, तो आप लोग भी कहते हैं साहब बहुत मजा आता है, गुलाब की बहुत सुगंध आ रही है. मगर अभी पूरी नहीं आई. पूरी तो आप वहां से उठेंगे और ये गुलाब ले लेंगे और फिर ऐसा रखेंगे तब भी नहीं आएगी. सब
तरफ से दिल हट गया, उपयोग हट गया और उस सुगंधि में लीन हो गया, वह घ्राणेन्द्रिय की जो प्रवृत्ति है, वो घ्राणेन्द्रिय में जो वृत्ति है वो पाप वृत्ति है वो। क्योंकि सुगंध और दुर्गंध वो किसकी पर्याय है? सुगंध दुर्गंध आत्मा में होती है क्या? नहीं होती है। तो उसका जानन हारा रहा, उसका जानन हारा रहो, सुगंध दुर्गंध। अभी बात आहार की हो रही थी, आहार की बात हो रही थी, आहार हो અંદરમાં વિચારવાનું, મારા આત્માને હમણાં ક્ષુધાવેદની નામના કર્મનો ઉદય ચાલી રહ્યો છે, થયો છે, તેને સર્વ પ્રકારે જીતવા હું અસમર્થ છું, તેથી સંભાવપૂર્વક હું તેને ઉપશમાવવા માટે આ પૂદગલોના પરમાણુઓને, દાળ ભાત રોટલી શાક જે હોય તે, આ શરીરના પૂદગલ પરમાણુઓથી પકડીને આ મોઢારૂપી પૂદગલ પરમાણુઓના અંદર નાખું છું અને તે પેટમાં ઉતારું છું. આ સમસ્ત પ્રક્રિયાનો હું તે વખતે જાણનાર રહું છું. मुनि तो ऐसा करते ही नहीं, समय सार में मना कर दिया चारों चीजों की, भले दृष्टि रूप से किया है और यथापद विचारित्र रूप से किया है, बराबर चार। अनिच्छक कहो अपरिग्रही ज्ञानी न इच्छे अशनने, ज्ञानी न इच्छे पानने, ज्ञानी न इच्छे पापने, ज्ञानी न इच्छे पुण्यने। એ અપેક્ષાએ જોવામાં આવે તો ગુણ અને દ્રવ્ય, ગુણનો કોઈ अलग नहीं नहीं, द्रव्य और गुण एक ही है, सिर्फ जब भेद करते हैं तो गुण हो जाता है और जब अभेद है तो द्रव्य है। हाँ तो वो है, आप ये पूछना चाहते हैं कि द्रव्य शुद्ध है, जो पर्याय शुद्ध है तब द्रव्य शुद्ध है कि नहीं है, ऐसा ऐसा पूछना चाहते हैं आप। हाँ, उसमें नहीं लगाना पड़ेगा, इसका एक जवाब नहीं है। वो भी मैं पहले दिन ही कहना चाहता था। 8वीं रहता है प्रवचन सार, परिणमति येन द्रव्यम तत्कालम तन्मयम इति प्रज्ञप्तम, तस्मात् धर्म परिणतो आत्मा धर्मो मंतव्य। फिर 3 उपयोग लिए हैं। अशुभोपयोग रूप आत्मा वो अशुभोपयोग रूप है, उस समय शुभोपयोग रूप आत्मा शुभोपयोग रूप है, और शुद्धोपयोग रूप आत्मा शुद्धोपयोग रूप है। वहां आपके प्रश्न का जवाब आया आंशिक। अब द्रव्य की मुख्यता करके कहते हैं, कितना भी विकार करो, विकार में ऐसी ताकत नहीं कि द्रव्य के स्वभाव को बदल देवे। अगर द्रव्य का स्वभाव बदल जाए तो किसी जीव का मोक्ष कभी हो नहीं सकता है। आत्मानु द्रव्य, आत्मद्रव्य जो विकारी થઈ જાય તો કદાપि એ અવિकारी થઈ શકે नहीं। ये अपेक्षाएं तो दोनों को संभालना। जब पर्याय है तो आत्मा विकारी भी है, अगर विकारी नहीं है तो सुख दुख नहीं है, और सुख दुख नहीं है तो तेरी मोक्ष की चेष्टा वो व्यर्थ है। दुख से छूटना नहीं चाहता है तो
प्रकार दोनों है। तो नए के बिना तत्व की सिद्धि ही नहीं। एक नए को छोड़ दो तो तीर्थ का नाश है, दूसरे नए को छोड़ दो तो तत्व का नाश है। जो चाहे सो करो। विवेकी पुरुष अपना कल्याण चाहता है, सो सभी समय अभिभाई बता स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा आदि, स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञा आदि में सामयिक पाठ में बोल रही मेरो है एक आत्मता में मम तुझ कीनो और सबय मम भिन्न जान सम तारस बीनो। फिर इसका नीचे भेद रूप करता है। माता पिता सुत मित्र ती आदि सबय यह मोते न्यारे भिन्न जान सब, ऐसा करके कहा है। तो વિવેકની વાત જે ચાલતી હતી એમાં આત્મજાગૃતિનો ભાઈએ પ્રશ્ન કર્યો। आत्मजागृति भेदरूप भी होनी चाहिए, आत्मजागृति अभेदरूप भी होनी चाहिए। दोनों से ही मोक्ष मार्ग की सिद्धि कम से कम दिगंबर जैन आमना है तो बिल्कुल एकदम मान दिए, वो तो किसी और का स्वीकार नहीं कर दी। को बोला भाई मुनि होवे कि नहीं होवे, हमारे भाव तो मुनि के हो गए तो हमारा मोक्ष हो जाएगा, तो ऐसे दिगंबर हमने नहीं मानेगी। मैंने आचार्य नहीं मानते। तो बहुत सावधान रहने की जरूरत रहती है। द्रव्य की शुद्धि, भाव की शुद्धि, भाव की शुद्धि, द्रव्य की शुद्धि। भाव मायना पर्याय, द्रव्य मायना द्रव्य। अखंड अभेद एक ज्ञायक है जिसमें कोई विकल्प ही नहीं है। वहां बंध मोक्ष का विवेक नहीं, तो बताया समय सार में शुरू में। वहां सम्यक दर्शन भी नहीं, सम्यक ज्ञान भी नहीं, सम्यक चारित्र नहीं, एक ही है। यही मूल मार्ग में बता ते त्रणे अभेद परिणाम तीरे जारे वर्ते ते आत्मा रूप ते मार्ग जीननो पामियो रे कि वहां पामियो ते निज स्वरूप। मूल मार्ग सांभळो जीवन। एक मिनिट कहीं ना પછી कुछ पंडित जी कुछ कॉमेंट्स देना चाहे तो देंगे। 902 માં આપણે પેલું જે બીજું લીધું છે ને એમાં અવિવેકનું પ્રેક્ટિકલ સ્વરૂપ કહ્યું છે। બે કવિતા છે ને એમાં બીજા કવિતામાં ત્રીજી, ચોથી, પાંચમી ને છઠ્ઠી 4 લીટી। जीवनी उत्पत्ति अने रोग शोक दुख मृत्यु देह नो स्वभाव जीव पद मा जणाय छे। एवो जे अनादि एक रूप नो मिथ्यात्व भाव ज्ञानी ना वचन वडे दूर थई जाय छे। अने पूरो थाय तो भासे जड़ चैतन्य नो प्रगट स्वभाव भिन्न बने द्रव्य निज निज रूप स्थित थाय छे। बने द्रव्य निज निज रूप स्थित थाय छे। यही हाँ 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 बराबर है। એટલે સમય સારનો કળશ વેદ વિજ્ઞાન સિદ્ધા સિદ્ધા ये के लिखे છે ને अस्य एव अभावता बद्धा बद्धा ये के लिए। तो भेद ज्ञान कहां तक करेंगे? ऐसे तो 8, 7, 6 गुणस्थान तक बुद्धिपूर्वक करेंगे और 11वें गुणस्थान तक अबुद्धिपूर्वक करेंगे। 12वें गुणस्थान में यथाख्यात चारित्र प्रकट हो गया तो वहां कुछ होता नहीं, उसको केवली ही कहते हैं, क्योंकि वितराग तो हो गए। वो छद्मस कहते हैं, वो केवल ज्ञान का विषय है।
1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 5 सेकंड है, अपने ज्ञान का विषय है, उसको जानने की जरूरत भी नहीं। अभी तो सप्तम गुणस्थान तक की बात मुख्य करना और उसमें भी चतुर्थ गुणस्थान को मुख्य करना। एक देव એટલે મોક્ષ તત્વ અને સદગુરુ એટલે સંવર, નિર્જરા અને પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય તત્વ, એટલું દરેક જગ્યાએ એનું ઇક્વેશન માંડી દેવું. દેવ એ ચરણાનુયોગની પરિભાષા છે ને મોક્ષ એ દ્રવ્યાનુયોગની પરિભાષા છે. ગુરુ એ ચરણાનુયોગની પરિભાષા છે અને संवर, निर्जरा और पुण्यानुबंधी पुण्य यह द्रव्यान योग की परिभाषा है. इतना थोड़ा ख्याल में रखने से अपने को सबका समन्वय होता है. बोलो के प्रश्न पंडित जी.